curved surface. Refraction from spherical curved surface. Pay attention over here. Suppose. So are you writing? Yeah. Because we can't see anything. It's still on a Gmail page with a green sheet. ठीक है, एक मिनट. Can you all see now? Yes, sir. So we are doing refraction from spherical surface or a curved surface. Suppose there is a curved surface. His refractive index is mu1. Either refractive index is mu2. The object is kept here. And the rays are going this way. Can I say this is the ray incident ray? बराबर है? The formula which has to be used over here always is mu2 by v minus mu1 by u is mu2 minus mu1 by r. This is the formula for refraction for a curved surface. Mu2 by v minus mu1 by u is mu2 minus mu1 by r. Remember yesterday we had done which surface? Plane surface. Plane surface ka r is how much? Infinity. So if r becomes infinity, if I put it in this formula, then you will get mu2 by v minus mu1 by u is anything upon infinity will become 0, na? Therefore, can I write mu2 by v is equal to mu1 by u? So remember this formula I had told you last time. V is equal to mu2 by mu1 into u. Hello? We had done this formula yesterday. Yes or no? So same Yes, formula sir. is there for a curved surface over here. Acha, everything has to be substituted over here with sign. So can anyone tell me what is the u? U क्या बनेगा? U. U इस केस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑब्जेक्ट इधर रखा है. U U U U U U U क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? Negative. Negative है because if you are standing over here and you are looking in the direction opposite to incident ray, so U is going to become negative. What about R? Radius of curvature of the curved surface. Is it positive or negative? Radius of curvature. See, this is the curvature, na? Hello. Yes, sir. So radius will be formed this side only, na? Negative only. When I Yes, sir. say center of curvature will be somewhere here, I don't know. So R will be negative only. Mu1 will be given to you. Similarly, mu2 will also be given to you. And if they find V, you will get the V answer indicating whether it is negative or positive. That will get the answer. Did you understand? Yes, sir. So this is based on mu2 by V minus mu1 by U is mu2 minus mu1 by R. Nothing else. It is a very simple standard thing which we need to follow and we'll get the result of this thing. So that way we are going to do. We'll be doing some sums based on it so that you all can understand. What is the formula beta? Mu2 by V minus mu1 by U is mu2 minus mu1 by R. Mu2 by V minus mu1 by U is mu2 minus mu1 by R. अच्छा, आपके बुक्स आ चुके हैं. वो जो शॉर्ट नोट्स के जो बुक्स कह रहा था ना मैं, वो अभी जस्ट डिलीवरी हुआ है उसका. तो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम टुमारो. वी कैन स्टार्ट मेकिंग अदर शॉर्ट नोट्स ऑल्सो. बाकी बेसिक सब लिखा हुआ रहेगा अंदर. आपको अगर कुछ लगता है एक्स्ट्रा है या कुछ है तो आप अंदर से और एडिशन कर सकते हो. गेटिंग इट? वन सेकंड, जस्ट वेट.
हेलो, यस। क्वेश्चन नंबर 8, अब ध्यान देना, व्हाट इज द फॉर्मूला? हेलो, कोई बताएगा फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का? अरे बोलो यार, क्या फॉर्मूला है? V minus U1 by U equals to U2 minus U1 by R. 2 माइनस, जब भी आपको कर्व सरफेस के बारे में बोलेगा, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला विथ प्रॉपर, क्या भाई, साइन। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, इसका कोई प्रूफ कोई पूछने वाला नहीं है, बट वी नीड टू नो हाउ टू यूज इट। An object is placed at the center of a glass sphere and it is seen from outside. Then prove that the virtual image is also starting from the virtual image is also formed at the center. Okay. So आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि एक ग्लास स्फीयर है, and बेटा where is the object placed? हेलो, हेलो यार बोलो। At the At the center. center of the glass. Yeah. Suppose you are viewing from here. आपको ऊपर नीचे अपेरेंट डेप्थ कब दिखाई देगा? जब लाइट मुड़ेगी। But I Yes. can see when the rays are coming from this part. Can I say it is coming perpendicular to the mirror at this point? Perpendicular to the surface at this point? बाबा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना। हेलो, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, हाउ इज द रेज गोइंग टू द आईज? परपेंडिकुलर. So can I say how much is the angle of incidence? Hello? 0. 0. Because it is normal is this only ना। अरे क्या बात कर रहे हो? This is the normal to this surface. अगर यहाँ पर आपको समझता नहीं है तो आप एक tangent बना लो ना। समझ में आ रहा है क्या? तो कैन आई से द रे विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सेंटर विल पास अनडिविएटेड, और वही करके वो आंखों तक पहुंचेगी। तो कैन आई से क्या रेस बेंड हुई है? रेस बेंड नहीं हुई है, No, इसका sir. मतलब जो Right. ऑब्जेक्ट है वही जगह पर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। Yes, बाबा sir. अगर रेस बेंड होती तो म्यू एच या म्यू बाय एच दिखाई देता ना, कल किया था ना हम लोग ने। Yes, ऐसे sir. Yes, sir. कॉइन ऊपर दिखता है, क्यों ऊपर दिखता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर देर इज नो No refraction. refraction, because how much is the angle of incidence? 0. So how much is Zero. the angle of refraction? 0. Zero. And I say image will also be seen at the same place as that of the object. समझ में आ रहा है क्या? It is the virtual image and it will be always seen at the center. Did you all understand? So if the eye was in the some other direction, so then also it would be So eye what will be happens? zero, right? Yeah. Suppose I is here, suppose I is this way, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो दूसरा रे निकल के जाएगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये रे भी तो ये टेंजेंट पे सीधा ही जाएगा ना। हेलो, Yes, sir. Yes. Yes. मतलब आप अपनी आंखें किधर भी रख लो, आपको वो ऑब्जेक्ट सेंटर पे उसका इमेज ही दिखाई देने वाला है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हेलो, यस और नो? क्लियर है ना भाई? चलो भाई, बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, a glass sphere of mu 1.5 with radius 15 centimeter has tiny air bubble 5 centimeters above the center. मैं बनाता हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स है, सब लोग ध्यान रखना। It is a glass sphere, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 with radius 15 centimeters. बाबा बोलो, has a tiny air bubble 5 centimeters above the center. तो यहाँ पर एक एयर बबल है, ओके, कितना सेंटीमीटर अबव द सेंटर? अरे कुछ हेल्प तो करो यार, कम ऑन, दिस इज देयर, तो दिस विल बिकम व्हाट? 10 cm फ्रॉम द कर्व, Tangent. Yes, sir. फ्रॉम द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस ये वाला है ना। आई नो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. द स्फीयर इज व्यूड लुकिंग डाउन along the extended radius, मतलब extended radius से हमने यहाँ पर क्या लगा दी? आंखें लगा दी, सही है? Yes, sir. yes or no sir? Extended radius. Okay, what is the apparent depth of the bubble
बिलो द सरफेस। अच्छा ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ बेटा? क्या मैं कह सकता हूँ इधर इसका नया डायग्राम बना सकता हूँ? ये कर्व सरफेस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 10. 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमने आंखें लगाई, बराबर। Yes sir. और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 15. 15 cm। चलो मजा आने वाला है। कोई बता सकता है वेयर इज द इंसिडेंट रे गोइंग? इंसिडेंट रे कहाँ पर है? हेलो, ये बबल है ना हमारा। इंसिडेंट रे कैसे जा रहा है? इंसिडेंट रे ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अरे क्या बोल रहा हूं मैं यार? Yes sir. कि आंखों So से निकलती है रेज? नहीं, नहीं ना। no 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 हाँ no. फिर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विच रे? इंसिडेंट। Incident ray. तो आपको इधर खड़े हो जाना है, यस और नो? Yes sir. आपका यू कितना रहेगा? यू, चलो कोई और बताओ यार, क्या कर रहे हो? हेलो, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ यू? कितना रहेगा? बताओ यार, कोई बताओ, चलो कितना रहेगा? -10? हेलो, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? अरे क्या टाइम पास है यार, इधर यू कितना है? -10 है, यस और नो? Yes sir. आर कितना है? आर -15. -15, बिकॉज आप उल्टा देख रहे हो ना इंसिडेंट रे के, ये सेंटर तक देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो। अच्छा, व्हाट इज μ1? राजवीर आप बताओ μ1 कितना रहेगा? रे कौन से मीडियम से? 1.5. हाँ 1.5, वेरी गुड, बिकॉज रे अंदर से आ रही है। अंदर से बाहर जा रहा μ2 कितना रहेगा? 1, बिकॉज इट इज कमिंग इन एयर। है. Air. Yes sir. और आर भी मिल गया। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? चलो बोलो। U2 by V minus U1 by U equals u2 to by U2 v minus U1. minus μ1 by u is μ2 minus μ1 by r। μ2 is 1 by v मालूम नहीं है, माइनस μ1 1.5 by u is -10, तो ये हो जाएगा +10 is μ2 minus μ1, that is 1 minus 1.5 is minus 0.5 by r is -15। समझ में आ रही है बात? हेलो, So it will be -1.5 by 10 only. नहीं No, बाबा, no, sorry, sir. क्या बात कर No, रहे हो? ठीक है, sorry, ये तो sorry. सही है ना। ये क्या हो गया? Yes, ये sir. कितना टाइम हो गया? ये कितना हो गया यार? 1 by v plus 1.5, that is 15 by 100 is equal to कितना होता है देखना, 1 by 30। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 1 by v, यार सब मैं सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पर ये क्या होता है? 1 by 15 by 100, सही है क्या? हेलो, Yes, sir. 5 3s are 5, 20s are 20 minus 90 by 30 into 20, सही है क्या? तो v क्या रहेगा? -70 by 30 into 20, ये उड़ गया, ये उड़ गया, कितना आता है? -60 by 7। हेलो, Yes, sir. माइनस साइन का क्या मतलब है? It's इमेज in कहाँ पर बन इमेज कहाँ पर left बन side. रहा है? नीचे ही, Inside, अंदर inside. अंदर ही Yes, बन sir. रहा है। -60 by 7 is approximately what? 7 9s are 63 ना, तो 8.7 कुछ आएगा। हेलो, इमेज इधर दिखाई देगा ना? So अरे 10 के 8.571. 8.5 चलना, 8.5 उससे कुछ वो Yes, नहीं sir. होता। 8.5 तो Yes, ये sir. इमेज मिला ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हे बाबा, नीट का हार्ड वाला क्वेश्चन है, जेई का इजी वाला क्वेश्चन है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, ये आना चाहिए। μ2 by v minus μ1 by u is μ2 minus μ1 by r। कर्व्ड सरफेस जब भी दिखेगा, मिरर नहीं है ये, मिरर नहीं है। आपको सब है ना लाइन सर याद करना पड़ेगा सब बराबर से। पॉइंट्स लिखो, कल नोट्स कलेक्ट करो, उसमें से एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बनाओ आप लोग। ओके, वो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको भी वापस से लिखो, ताकि आपको पूरा बराबर से दिमाग में बैठ जाए कौन से फॉर्मूला से। वो सिर्फ देख के पढ़ना नहीं है, उसको लिखना है फिर से। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको और ऐड किया करो। इज इट ओके? हेलो, Yes, sir. इंपॉर्टेंट है यार। μ2 by v minus μ1 by u is μ2 minus μ1 by r। μ2 by v minus μ1 by u is μ2 minus μ1 by r। 10th one,
listen to me. One end of the long glass rod is formed into a convex surface. बोलो सही है. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 6 centimeter. An object is positioned in air along the axis of the rod. So suppose this is the axis of the rod. An object is positioned over here. Find the image position corresponding to object distance. मैं सिर्फ एक ही करता हूँ, ये करता हूँ मैं. कितना डिस्टेंस है बेटा ये? -20. हाँ वो हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है. अयो हाँ भाई ऐसा. चलो पहले इधर खड़े हो जाते हैं हम लोग. इंसिडेंट रे ऐसे आने वाला है. चलो राजवीर बेटा यू के बारे में बताओ. यू कितना है? -20. Yeah. आर कितना है बेटा? Plus आर हाँ 6 cm. रेडियस ऐसे बनेगा ना, ये कर्वेचर इधर. Yes sir, yes sir, yes sir, yes. रेडियस इधर बनने वाला है, तो रेडियस विल बिकम +6. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग हियर. यू मिल गया, ये मिल गया. अच्छा μ1 कितना है? एयर इंसिडेंट रे μ1 इज 1. 1. μ2 कितना है? 1.5. 1.5. अरे यार डन और नॉट मैन. व्हाट इज द फार्मूला? Yes sir, μ2 yes by sir. v minus μ1 by u is μ2 minus μ1 by r. इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो. μ2 by v minus μ1 is 1 by u. that is ये +20 हो गया. μ2 minus μ1 that is 0.5 by r is 6. तो ये हो गया 1.5 by v is equal to 1 by 12 minus 1 by 20. So it will become 8 by 12 into 20. 1.5 by v. Hello. 4 2s are 8. 4 5s are 20. 2 6 are 12. 6 5 are 30. 30 into 1.5 45. हेलो. अरे क्या कह रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. 45 cm मतलब किधर बनने वाला है? किधर बनने वाला है? 45 प्लस है मगर ये, तो दैट मींस तो ये right 45. side. हेलो. Yes sir, yes. ये इमेज बनेगा कि नहीं? मतलब ये ऑब्जेक्ट ग्लास रॉड के अंदर दिखाई देगा आपको. क्लियर है? Yes sir. क्लियर है क्या? Yes sir. अदर पार्ट्स कैन ऑल्सो बी सॉल्व कॉरस्पॉन्डिंगली. समझ में आ रहा है क्या? ओके. तो अदर पार्ट्स कैन ऑल्सो बी सॉल्व. इसको प्रैक्टिस करते रहो तो ये दिमाग में बैठेगा. बहुत सारे टाइप्स है रे ऑप्टिक्स में. ओके. उसको बराबर से 7 क्वेश्चन आता है बेटा, उसको छोड़ना ही नहीं है. आप बराबर से इसका फॉर्मूला शीट बनाओ, पहले कलेक्ट करो, फिर फॉर्मूला शीट बनाओ, एंड देन इट विल बी डन. क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम लोग. अ डस्ट पार्टिकल इज इनसाइड अ स्फीयर. देखो मेरी बात सुनो. स्फीयर है, पहले केस में बबल था, अभी क्या है? डस्ट पार्टिकल है. म्यू कितना है? 4/3. द डस्ट पार्टिकल इज 10 cm फ्रॉम द वॉल. अरे वही तो है, ये डस्ट पार्टिकल है. कितना cm फ्रॉम द वॉल? 10. हेलो. ऑफ रेडियस. अरे ये वही तो सम है. Yes sir, 50. वही तो है यार, ये डस्ट है ना, उधर बबल था. बराबर है क्या? So only U1 changes. हाँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? नहीं, μ1 इज दिस ओनली ना. Yes sir, there it was 1.5. This is 4/3. हाँ तो वही तो हो गया. तो वो फॉर्मूला तो लगा देना है, करेंगे ना. हेलो. Yes sir, yes sir. μ2 by v वो आंसर कितना आया था? 8.5 यू टोल्ड ना. अरे राजवीर तुमने ही तो बताया था 8.57. -8.5. Yes sir. -8.57. इसका आंसर आएगा -9. कितना आएगा बेटा? -9. मतलब कि अंदर ही दिखाई देगा ना डस्ट पार्टिकल. हेलो. Yes sir. कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वही μ2 by v minus μ1 by u is μ2 minus μ1 by r. खासकर नीट वाले बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये आता ही आता है. -9 मतलब डस्ट पार्टिकल का इमेज ये दिखाएगा. सही है क्या? हेलो 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 हेलो. यस और नो सर? Yes, sir. अरे क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं यार. एक एक चीज के ऊपर 4 4 सम कर रहे हैं, अभी भी नहीं आएगा तो क्या करूं मैं? नहीं. ओके. कॉन्सेप्ट को घसो आप लोग. अंडरस्टैंड? तो ही बैठेगा वो, वरना एक बार सम करने से कुछ होने वाला नहीं है. कम से कम एक टाइप का सम 3 से 4 बार प्रैक्टिस होना चाहिए. एक टाइप का सम 3 से 4 बार प्रैक्टिस होना चाहिए.
10 बुक के पीछे मत जाओ, ये भी करना है वो भी करना है, एक चीज करो और उसके टाइप को घसो बेटा. If that type comes, then with accuracy and with speed you will be able to do it in the exam. Okay, सब बुक्स में सेम ही कॉन्सेप्ट, सबको सेम दिया रहेगा. Question number 12. A parallel beam of light enters a clear plastic bead. Plastic bead. Hello. Plastic bead. मालूम है ना, bead तो ऐसे ही होता है ना. Hello. Hello. अरे. Yes, sir. Which light is there? Parallel beam of light. कितना कितना डायमीटर है? 2.5. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रहेगा? 1.75. 25, sir. 1.25. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.44 है. ये mu2 है ना, mu1 तो 1 ही रहेगा. At what point beyond the bead will the rays brought to focus? Okay. हमको क्या मांगता है? हमको v मांगता है, v. अच्छा चलो बताओ राजवीर बेटा, u कितना है? u हेलो. अरे यार, ऑब्जेक्ट रेस कहाँ से आ रही है यार? इन्फिनिटी से आ रही है ना. पैरेलल रेस कहाँ से आती है? Yes, sir. Infinity. v तो ढूंढना है. mu1 is 1, mu2 is 1.44. Getting it? Yes, sir. And what is mu2? हाँ, mu2 तो मिल गया. और कुछ चाहिए क्या? r r r R. r r कौन सा है? r इधर खड़े हो जाओ. r इस तरफ r है ना. Plus 1.25. प्लस 1.25. r is plus 1.25. So you will be minus infinity, no? हाँ, वो 1 upon u करने का. माइनस, एक्चुअली Yes. स्पीकिंग इट इज माइनस इन्फिनिटी. Accurately speaking, mu2 by v minus mu1 by u is mu2 minus mu1 by r. अरे बाबा, क्या समझ में आ रही है बात? yes or no? Yes, sir. mu2 1.44 by v minus mu1 by u तो 0 हो गया. mu2 minus mu1 1.44 minus 1.4, ये 1.44 हो गया by r. r is what? 1.25. हेलो. Yes, sir. तो v का वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगा 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या? +4 है. मतलब क्या? So अंदर होगा. अंदर होगा. बाहर ये बाहर बाहर होगा. सीधा बाहर इधर इधर बाहर. इधर Right, sir. इधर आएगा. Yeah, एकदम right, sir. इधर आएगा. इधर से 4 cm. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके. मतलब दे ऑल रेज आर गोना फोकस ओवर हियर. मतलब ये जो रेज है ना, वो इधर आके. Focus. गेटिंग इट? Yes, sir. तो अगर मैं इधर एक स्क्रीन लगाऊं तो इमेज इधर बनने वाला है. हेलो. Did you Yes. understand refraction from curved surface? Did you understand refraction of plane surface? Did you understand mirrors, plane mirror, curved mirror, convex mirror, concave mirror? अब तक सब चीज क्लियर है? Did you understand the shift due to glass slab? हेलो. एकदम तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूँ यार मैं. हेलो. सब चीज याद आ रही है कुछ? हाँ भाई. अरे चलो आगे बढ़ते हैं. Now I am going to concept of, भी मेन चीज चालू करते हैं. क्या बाकी है अभी अपना? हेलो. क्या स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल सरफेस खत्म हो गया. अभी क्या करना है? You all are there or ran away? Right? क्या पढ़ना है अभी? Lens theory. लेंस थ्योरी. सब लोग इधर ध्यान देना. पूरा लेंस थियरी में खत्म करूंगा. कल सुबह उसके सम्स करेंगे. ठीक है ना? हेलो. 2 lectures I am taking on lens. Are you all there? Yes, sir. तो कल सुबह हम लोग इसका लेंस थियरी पढ़ेंगे एंड फिर छुट्टी रहेगी कुछ दिनों की. और उसके बाद में विल स्टार्ट विथ प्रिज्म्स. प्रिज्म्स एंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप. बराबर है ना? ओके. एकदम बराबर से प्रैक्टिस करो. जो चीज हो रही है उसको बराबर से प्रैक्टिस करो. लेंस थियरी वी आर स्टडिंग. टाइप्स ऑफ लेंस. ये कौन सा लेंस होता है? Biconvex. बाइकॉन्वेक्स. चलो बाबा. ये कौन सा लेंस है? ये सब वीडियो में एक्सप्लेन किया है. क्या बोलते हैं इसको? प्लेनो कॉन्वेक्स. Plano convex. बराबर है.
इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्या उल्टा भी बोल सकते हैं। हेलो, यस और नो? वैसे ही दिस इज, यार बोलो ना, फटाफट बोलो ना, ये कोई टाइम पास चीज है यार। इसे बाय बाइकॉनकेव। कॉनकेव, Concave. प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। ये क्या होता है? कॉनकेवो, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, या एक्चुअली वही सेम ही है, पीछे वाले की तरह ही है। ओके, बट जनरली एग्जाम में या तो ये आता है, या तो ये आता है, या तो ये आता है, या तो ये आता है। बराबर है क्या? ये चार Yes. चीजें पूछी जाती है। बराबर। अच्छा, इसमें लेंस को पढ़ने के लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस, कंडीशन 1, कुछ कंडीशंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस शुड बी वेरी थिन। हेलो, लेंस शुड बी वेरी वेरी थिन, मतलब ये जो लेंस है ये बहुत बहुत छोटा होना चाहिए बेटा, ये ऐसे। ओके, या तो ये ऐसे होना चाहिए, एकदम एकदम पतला सी लेंस होना चाहिए। अच्छा, अगर ये लेंस थिन ना हुआ तो, लेंस अगर ऐसे हुआ तो बड़ा सी, ये ऐसे हो गया तो क्या करेंगे? तो क्या, हाउ मेनी कर्व सरफेसेस आर देयर ओवर हियर? 2. तो इधर कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो पीछे किया ना हमने स्फीयर वाला, बीड वाला। हेलो, Yes, हेलो, sir. दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2. 2। तो इधर कौन सा फॉर्मूला? जब मोटा लेंस है ना, मोटा लेंस है, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाय mu1 by r हाउ मेनी टाइम्स? twice. ये जनरली कहाँ पूछा जाता है? कहाँ पूछा जाता है यार, समझा क्या? हेलो, Yes, sir. ये याद रखना, अगर लेंस थिन नहीं है, अगर लेंस मोटा है, तो आपको 2 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो जब आपका एडवांस आएगा तो भी मैं सिखा दूंगा, अभी इधर कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। सेकेंड कंडीशन, ऑन बोथ साइड्स मीडियम शुड बी सेम। क्या भाई? ऑन बोथ साइड्स मीडियम शुड बी Same. सेम, मतलब अगर ये म्यू एयर है, ये ग्लास है, तो ये भी क्या होना चाहिए? एयर। Air. हेलो, ऐसा नहीं है कि एयर है, ये पानी है, ये ग्लास है, तो नहीं चलेगा, तो फिर से ये फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको बताऊंगा, एडवांस में आएगा वो। हेलो, Yes, sir. ओके, मीडियम शुड बी सेम। हेलो, समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इफ condition 1 and condition 2 are not satisfied, then use which formula? यार अभी सिखाया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। वो कैसे यूज करना है वो सब मैं बताऊंगा। ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, विल sir. बी एक्सप्लेन्ड वेयर? इन द प्रॉब्लम। ये मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। अभी सिर्फ बेसिक थियरी तो पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है? लेंथ शुड बी थिन, अदरवाइज नॉट। ओके, ओके, अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, 2 फोकस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फोकस, ध्यान रखना अभी ये चीज की, ये इंपॉर्टेंट चीज है, फिर हम लोग रे डायग्राम पे आएंगे। फर्स्ट फोकस क्या होता है? फर्स्ट फोकस वो होता है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। हेलो, क्या है फर्स्ट फोकस? जहां पर क्या रखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एग्जाम्पल, ये कौन सा लेंस है? हेलो, कौन सा लेंस है बोलो तो यार। बाय बाय कॉन्वेक्स। हेलो, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा,
The rays passes through the lens at the focus. Suppose I kept it as f1. First focus को बोलते हैं f1. I keep it over here. When the rays go, how will the rays emerge? Hello? When the object is kept at the focus, how will the rays emerge? अरे बोलो. Huh? You all are not there or what? चलो, tell me fast. If you don't respond, I'll close down the lecture only then. इधर ध्यान दो. क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है क्या? Parallel. हाँ, the rays will emerge parallel. Yes. अच्छा, ये फोकस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये कौन सा लेंस है पहले बताओ? कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स. बाई कॉन्वेक्स. ये फोकस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? हेलो, ये साइड पे फोकस, ये वाला जो फोकस है f1, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इधर खड़े होना है. पॉजिटिव. कहाँ पॉजिटिव है यार? इंसिडेंट रे के उल्टा है. Negative. f1 इज नेगेटिव. बट या दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग ना. मैंने आपको क्या बताया था? कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. इसका मतलब हाँ. ये फोकस नहीं है. ये फोकस की बात नहीं हो रही है. समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस सर, यस हम सर. लोग ये फोकस की बात नहीं करते. वी नेवर. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि भाई आप लोग जवाब दो. ऐसे यार खुद से पढ़ाना है तो आप वीडियो देखो घर पे बैठ के. ओके, ये फर्स्ट फोकस की बात कभी भी नहीं करना है हमको. वी टॉक अबाउट द सेकंड फोकस. दैट आई टेल यू. ओके, दैट आई टेल यू. जहां पर इमेज बनेगा, जहां पर क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगा. सपोज अभी मैं बात करता हूँ सेकंड फोकस की, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, है ना. हमारे काम का कौन सा फोकस है? सेकंड फोकस. ये हमारे काम का है. ओके, वी यूज दिस. हेलो, तो अगर मैं आपसे कहूँ ये बाय कॉन्वेक्स है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अरे आ रहा है पैरेलल, चलो क्या होगा? कहां पर मिलेगा? कन्वर्ज. सॉरी, Converge डाइवर्ज at- होगा एफ. डाइवर्ज F- कैसे होगा यार? कॉन्वेक्स सॉरी लेंस सर, है. सॉरी सॉरी, कन्वर्ज एट एफ. सर. f2 ये f है, बराबर है क्या? अच्छा, a प्लस Yes, f sir. है मेरा. यस सर. हमको इस Yes, फोकस sir. में इंटरेस्ट है. मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होता है. एंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकस प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस हेलो, होता है. याद रखना ये पॉजिटिव. यस सर. We are interested in this. We are not interested in the first focus. We are interested in the second Second focus. We are focus. always interested in the second focus. We are always interested in the second focus. याद रखना. और f1 f2 सेम ही होता है. f1 का भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. मींस आई कैन से f1 का मैग्नीट्यूड एंड f2 का मैग्नीट्यूड इज द सेम. दैट इज f only. But we are interested in the which focus? सेकंड फोकस. Second focus. ध्यान रखना है इसको. कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए. ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब हम लोग बात करेंगे कॉनकेव कॉनकेव लेंस की. बेटा कॉनकेव लेंस ये है, इसके पास भी दो फोकस है. मैं बात करता हूँ फर्स्ट फोकस की, f1 की. f1 क्या होता है? फर्स्ट फोकस क्या होता है? जहां पर क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट. और ये हमको इंटरेस्ट नहीं है, बट तो भी मैं फिर से बता देता हूँ. तो सपोज यहाँ से एक रे ऐसे आ रही है और यहाँ से रे ऐसे आ रही है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा. and I say rays will converge here. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना. हेलो, यस सर. but I know that when convex concave lens ऐसे ऐसे रेज आएगी तो they will actually merge, ऐसे हो जाएगा. बट ये फोकस जो है ये f1 है, इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ऑब्जेक्ट इज केप्ट. अच्छा, दिस फोकस इज प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू दिस रे. दिस f1 इज प्लस और माइनस? प्लस. प्लस होनी ना. इंसिडेंट रे ये है ना बच्चा. यस सर. अब इधर खड़े हो जाएंगे तो इंसिडेंट रे अगर इसको देखेंगे तो f1 इज प्लस.
बट कॉनकेव में हमको मालूम है f has to be negative, सही है क्या? Negative. Yeah. Yes, यहाँ sir. पर f1 is given as plus, which is not taken in our consideration. This is not taken. We have to take which focus? We have to take the क्या भाई? F2. Second focus. That is f2. Here what is formed? Image is formed. Image is formed. अच्छा, image कैसे बना? देखो इधर. Okay. Rays are coming parallel. ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ऐसे डाइवर्ज होगा, ये पीछे मिलेगा, बराबर है क्या? Yes, sir. ये क्या है मेरा? f2 है. F2. अच्छा, दिस f2 विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव है, तो कॉनकेव में जब भी बात करूंगा मैं, मुझे इंटरेस्ट इसमें है, दैट इज f विल बिकम नेगेटिव, बट आई नो द मैग्नीट्यूड ऑफ f1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ f2 इज द सेम, व्हिच इज f ओनली. समझा क्या? दो रूल्स है. हेलो, Yes, sir. दोनों फोकस है, बट हमको कौन से फोकस में इंटरेस्ट है? सेकंड में, बिकॉज वहां पर क्या बनता है? इमेज बनता है. हेलो यार बोलो, गेटिंग इट? सही है ना? अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रे डायग्राम की. चलो हेल्प करो. हेलो यार, क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रही है क्या? रे डायग्राम, बेटा रे डायग्राम बनाने के लिए कितने रेस के काम आती है? 2. हाँ, 2 रेस का काम आती है. बोलो कैसे कैसे रेस बनेंगे? सबसे पहले अगर मैं रे डायग्राम इसका बनाऊं, One from the object passing through okay, the. can I say whenever anything passes through the optical center passes undeviated? ये पहला वाला रे, सही है क्या? हेलो, whenever any parallel rays are there, they converge where? At the focus. ये दूसरा वाला रे. हेलो हेलो बोलो. तीसरा वाला रे, अगर यहाँ के फोकस से अगर कुछ चीज निकलती है तो दे विल इमर्ज पैरेलल. तीसरा वाला रे, क्या हो रहा है? समझ में आ रही है क्या बात? यस और नो? Yes, sir. Now we do ray diagrams for convex lens. Please be with me. Ray diagram for convex lens. Be with me, please. देखो भैया, फर्स्ट ये है, ये क्या एफ है? ये 2f. ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. चलो बोलो क्या करना है? ऑब्जेक्ट LRI कैसे जाएगा? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ. Pass to the optical center. पैरेलल, और ये एफ है तो Parallel ये to भी एफ principal पे axis. कट करेगा ना. Yes, sir. सेकंड वाला विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, विल पास अनडिविएटेड. सही? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा छोटा आएगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है. चलो बताओ कैसे है? ऑब्जेक्ट कैसे है? Real inverted Inverted नहीं, diminished. ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड beyond C or 2F. 2F. बियॉन्ड 2f. इमेज कैसे बना? Real inverted diminished. रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड. अच्छा एक मिनट. कैन आई राइट m इज माइनस हाफ? हेलो, Yes, sir. माइनस साइन का मतलब उल्टा है और हाफ है मतलब डिमिनिश्ड है. और मुझे और एक चीज बताओ, किसका वेलोसिटी बड़ा है, ऑब्जेक्ट का कि इमेज का? ऑब्जेक्ट Object का. ऑब्जेक्ट का प्लेग्राउंड इज बिटवीन इन्फिनिटी टू 2f and image over here is between f and 2f. 2F. So can I say VO is greater than VI? बोलो भाई.
So in the recording you gave m as minus 3/4. हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे लेस देन 1 ही है ना अंश, क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, पर ठीक है उससे सर, क्या ओके। क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -3/4 is also less than 1, this is also less than 1, चलेगा ना भाई? दिस इज आई हैव अज्यूम्ड। तो भाई ये कोई हाँ हार्ड एंड सर, फास्ट रूल थोड़ी वो है। अपना लेट वाला है ये। हाँ लेट वाला कंडीशन है ना। हाँ ओके, समझा सर, ओके सर, समझा। ओके लेट या वाला कंडीशन है, वो थोड़ी ऐसे। फास्ट केस 2 दिस इज देयर, लेंस है f 2f, चलो सुजल f Yes. 2f, चलो ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ये तो एकदम सबसे इजी कंडीशन है। क्या होने वाला है? Past. क्या हुआ? 2F. सही है ना? Yes, sir. चलो इसके कंडीशन बताओ फटाफट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2F. चलो राजवीर बताओ इमेज के बारे में। Real inverted Real same side. inverted same size. m के बारे में क्या ख्याल है? -1. -1. ये लेट नहीं है, ये तो फैक्ट है। हेलो Yes sir, yes sir. ये Same फैक्ट है। sir. अच्छा vo एंड vi के बारे में क्या ख्याल है? VO is greater than Same. VI. ग्रेटर देन नहीं है, एट दिस इंस्टेंट बोथ आर सेम। हेलो Sorry. एट दिस इंस्टेंट बोथ आर सेम। हेलो यार बोलो, क्लियर है? Yes है sir. ना? कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यार, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ठीक है आगे बढ़ो चलो। खाली फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा है तो इसको स्लोली करो। केस 3 ये f, ये 2f, ये f, ये 2f। कहना इसे अभी कहाँ आ गया? Between. चलो बेटा ये ऐसे ऐसे जाएगा, करेंगे ना? शुरू हो जाओ। ऑब्जेक्ट किधर है? Between F and 2F. इमेज के बारे में क्या ख्याल है? Real inverted magnified. रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। m के बारे में? Minus. कौन सा वेलोसिटी किसका बढ़ा, ऑब्जेक्ट का इमेज का? Image. अरे बस पढ़ के खत्म करो यार, अभी टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बोलो किसका ज्यादा? Image. इमेज का ज्यादा है ना ऑब्जेक्ट से। ओके ऑनलाइन सिखाना डिफिकल्ट हो गया है यार ये सब। केस 4 क्लियर है ना? ये f है, ये 2f, ये f, 2f। ऑब्जेक्ट किधर रखना है? हेलो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? हेलो एट f, बोलो। So. सही है क्या? Yes. ऑब्जेक्ट एट f, इमेज रियल inverted and very magnified, very highly magnified. M is very high, minus I, very high. Hello, very big number. सही है क्या? Hello, hello. Yes, sir. And VI is greater than VO. ये हो गया केस को। चलो हाँ फटाफट प्लीज। केस 5 इंपॉर्टेंट केस है।
F to F, F to F। ऑब्जेक्ट यहां पर है, कौन बताएगा? चलो फटाफट बताओ। हेलो, सही है क्या? Yes, sir. ये मिलने वाला तो है नहीं, Yes. From behind. कहाँ मिलाएंगे? Virtual. सही है ना? Yes. Yes, sir. ये इमेज है, क्या बोल सकते हो इसका? Virtual erect and ऑब्जेक्ट, magnet. ऑब्जेक्ट कहाँ है? Oh, between F and F and P. C. ऑप्टिकल सेंटर। Optical center. Yes, sir. इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड Virtual. मैग्निफाइड, magnify. MS+3 लेट। हेलो, Yes, sir. इसका ऑब्जेक्ट ज्यादा, इमेज ज्यादा? इमेज ज्यादा ना? Image का Image. velocity का. अच्छा मेरी एक बात सुनो, इन पांचों केस में से मैग्निफाइड इमेजेस कहाँ बन रहे थे? केस 3 एंड केस 4 Case तो 4. समझ, ये तो समझ में ही आता है, ये तो समझ में ही आता है। कैन आई से केस 3 और केस 5 में मैग्निफाइड बनता था? हेलो, Yes, sir. Yes, केस sir. 4 तो समझ में आ ही जाएगा। Yes, sir. कैन Yes, आई sir. से इन Very. केस 3 एंड केस 5, एक मिनट, हाउ इज द इमेज? Magnified. बट वेट, यू दोनों में नेगेटिव है। हेलो, Yes, sir. वी इसमें क्या है? केस 3 में वी क्या है? पॉजिटिव। Yeah. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर कौन सा इमेज बनेगा? Real. Real. यहाँ पर यू नेगेटिव है केस 5 में, वी भी क्या है? और V भी negative है. Negative. यहाँ पर क्या बनेगा? Virtual. Virtual. याद है वो दो केस वाला सम? हेलो, Yes, sir. ए मैन, हेलो, हेलो। Yes, sir. मिरर, Yes. मिरर में भी दो केस करते थे जहां पर मैग्निफिकेशन दिया रहता था, तो आपको ऐसे इसको मैनिपुलेट करना है, ध्यान रखना प्लीज। एंड डिमिनिश में कितना केस है यहाँ पर? Two. हेलो, Case एक ही 1 है, and 2. केस 1 एक ही है, एक ही case एक 1. ही है भाई, एक ही है, एक ही है। Yes, sir. हेलो, Yes. Yes, ध्यान sir. रखना, ये है ना टिप्स पे आना चाहिए पूरा, ये जो चीज है ये सब आना चाहिए, वरना गया उड़ जाएगा सीधा। गेटिंग इट? नीट वालों को बहुत कम टाइम मिलेगा इसमें, जेई वालों को तो अप्रोक्सीमेटली यू ऑल हैव 2 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन, थोड़ा सोच के डायग्राम वायग्राम बना के कर सकते हो। नीट वालों को एकदम बराबर, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा आपको, बट आपको लाइटनिंग फास्ट स्पीड से दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, हाँ ये वाला केस था, ये वाला केस 3 है, वो वाला केस 5 है। बड़े सम्स नहीं आएंगे आप लोग को, जेई वालों को बड़े सम्स आएंगे, बट आपको टाइम भी मिल रहा है। ओके, गेटिंग इट? और 25 क्वेश्चन है यार, क्लियर है? Yes, sir. तो ध्यान रखो प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कौन सा लेंस बताया अभी? Concave. Concave. क्लियर है? ये एफ है, 2F। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या होगा बताओ? पहला रे ऐसे जाएगा, कौन सा लेंस है? इमर्जिंग डाइवर्जिंग है ना? हेलो, Yes, sir. ये तो डाइवर्ज करेगा, एंड सेकेंड रे passes through the optical center will pass undeviated। इसको पीछे मिलाता हूँ, कहीं से ये इमेज मिला कि नहीं मिला? Hmm. सही है ना? चलो बोलो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? Between F and 2. Between F and 2F, it can be anywhere actually। okay, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. between F and minus infinity, anywhere, there is only one case। अच्छा, इमेज के बारे में क्या ख्याल है? Virtual erect diminished. Between F and infinity, between C and F, minus F, and virtual erect and Diminished. तो याद रखना इधर डिमिनिश्ड वाला केस है। क्लियर है ना? Yes, sir.
पीछे भी डिमिनिस्ड केस था, कौन सा था? दैट वाज केस 1। हेलो, Yes. यहाँ पर भी डिमिनिस्ड केस है, बट उसमें और इसमें फर्क क्या है? वो रियल है और ये क्या है? वर्चुअल है। Virtual. हेलो, अरे बोलो मैन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. Can I say magnification over here is plus 1/4 या plus half? Plus half diminished है इसके लिए, प्लस तो है, इरेक्ट है इसके लिए। हेलो, क्या करूं मैं? हैं? यस और नो सर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ सम्स, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले है देयर। फिर ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला कौन सा है? 1/v Minus minus 1 1 by by is 1/f. Everything has to be substituted with, sign. ध्यान रखना। पीछे क्या था? मिरर में क्या था? मिरर में Plus sign. प्लस साइन था। ओके ठीक है। सेकंड वाला मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी v/u। मिरर में क्या था? मिरर में क्या था? अरे किसको याद है मैग्निफिकेशन का? माइनस बी बाई यू। हाँ भाई, भूल मत जाओ, भूल मत जाओ, एकदम कंफ्यूजिंग है। माइनस v/u मिरर में था, इधर v/u है, बट एवरीथिंग अगेन हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट सर? साइन। यस। साइन ओनली। कोई शॉर्टकट याद नहीं रखना है इसमें, शॉर्टकट दिमाग खराब कर देगा आपका। एकदम बेसिक फॉर्मूला याद करो और साइन सब्स्टिट्यूट करो, अपने आप आंसर दिखाई देगा। कोई फॉर्मूला याद, शॉर्टकट कुछ भी याद मत करो, बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है। ओके, मत करो वो सब, बेसिक फॉर्मूला याद करो। इधर, this is a very important formula which I am going to do right now, is called as lens maker's formula. Okay, lens makers, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। What is the formula? 1/f is mu2 by mu1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. 1 upon f is mu2 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. How to use it? See, I'll tell you. Suppose ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? क्या है इसका लेंस? क्या है? क्या है बोलो यार, बोलो। बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव, क्या है? बाई कॉन्वेक्स है ना? अरे Yes, sir. भाई बोलो, बाई कॉन्वेक्स है। यस अब मैं बोलूं इसका, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज है 3 सेंटीमीटर। सही है? हेलो, Yes, sir. अंदर का म्यू जो है वो 1.5 है, बाहर का म्यू जो है वो 1 है। मैं बोलूं इसका पूरे बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालो, तो कौन से फॉर्मूला में पुट करेंगे? 1 अपॉन एफ। Lens. अच्छा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम लोग ये पकड़ रहे हैं। हेलो, ऑलवेज रिमेंबर ये कैसे लेना है, इधर ध्यान देना। इंसिडेंट रे ये है, तो r1 ये रहेगा, r2 ये रहेगा, mu1 ये रहेगा, mu2 ये रहेगा। क्लियर है? हेलो, Yes, अभी sir. लगाओ, लगाओ फॉर्मूला 1 अपॉन एफ। व्हाट इज mu2 बाई mu1? अरे फॉर्मूला यूज करना है, बोलो जल्दी यार। mu2 बाई mu1 1.5 upon 1. 1.5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन r1। r1 कितना है? 2. नो, Plus एक मिनट, 2. एक मिनट, ये ऐसे है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे, आप इधर खड़े हो जाओ, आप r1 की तरफ देखेंगे। इफ यू स्टैंडिंग हियर ऑफ r1 की तरफ देखेंगे, तो r1 प्लस आएगा माइनस आएगा? Plus. प्लस आएगा। दैट विल बिकम 1/2 माइनस, अच्छा r2 कैसे आएगा? r2 Minus. r2 माइनस आएगा, तो इट विल बिकम Plus 1 by प्लस 1/3। ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से f का वैल्यू आपको दिखाई देगा। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज? Yes, sir.
इसके आगे बहुत सारे सम्स आएंगे, हम लोग करने वाले, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम कूल, ओके गुड। बट अभी फिलहाल हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस ऑल हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट सर साइन, साइन। और R1 R2 का पहचान अभी मैंने आपको बताया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन वाला प्लस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, क्या भाई, ओके। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये R1, ये R2, ये इंसिडेंट रे, ये म्यू2, ये म्यू1। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ये चीज Yes, ठीक है, sir. ये बढ़ता है। चलो फोर्थ, कंबाइंड लेंस। अगर दो लेंस को कंबाइन कर दिया, मतलब ऐसे, ये कौन सा लेंस है बेटा, बाय कॉन्वेक्स। Convex. इसी के साथ में मैंने ऐसे और एक लेंस जोड़ दिया, कैन आई राइट दिस एज दिस इज दिस प्लस दिस। Yes, अरे sir. देखो यार, बोलो ना, बोलो। Sir. इसका फोकल लेंथ पकड़ो f1, इसका फोकल लेंथ पकड़ो f2, so can I say the net focal length 1 upon f will be 1 upon f1 plus 1 upon f2। ये याद रखना, whenever they are connected in series it will be like कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटर का फॉर्मूला मालूम है ना, सीरीज में 1 upon c is 1 upon c1 Yes, plus 1 sir. upon c2। Sir. हेलो, और Yes, sir. और इधर कैन आई से पावर ऑफ अ लेंस, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, पावर ऑफ अ मिरर क्या था, 1 by माइनस F. वन Upon. Oh, minus माइनस 1 by, वन yes, माइनस वन बाय एफ, यहाँ पर है 1 बाय एफ इन 1 by मीटर। अच्छा, कैन आई से 1 बाय एफ इन मीटर, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, नेट पावर, पावर नेट विल बिकम is equal पावर to 1 1 प्लस P पावर 2, P2. Power 2. ये दियोप्टर होता है इसका यूनिट, सही है क्या। Yes, sir. हेलो, तो Yes, हमेशा sir. हम लोग पावर को ऐड करते हैं यहाँ पर, और या तो 1 बाय एफ इज 1 बाय एफ1 प्लस 1 बाय एफ2 सीखना है हमको, गेटिंग इट। ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इमेज वेलोसिटी, ओके। कैन आई से इमेज वेलोसिटी, दो कंडीशन थे, वन वाज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, लोग कुछ याद आ रहा है क्या, वी आई इज एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ, उधर क्या था मिरर में, इमेज वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ओवर हियर इज वी आई इज एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ, उधर क्या था, हेलो यार रट्टा मारो, वी आई वॉज माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ, क्या था उधर, Minus. माइनस था, बिकॉज इमेज एंड ऑब्जेक्ट गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, अगर आपको याद रहेगा तो। यहाँ पर इमेज एंड ऑब्जेक्ट एम स्क्वायर है, मतलब प्लस है, तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल गो इन द सेम डायरेक्शन, हेलो, बट दिस इज विच अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, हेलो, क्या हो रहा है, व्हाट, Yes, sir. अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। सेवेंथ, इमेज वेलोसिटी क्या, perpendicular to principal axis, Perpendicular. vi is m MVO. time vo, उधर क्या था, Minus उधर भी M. सेम, नो नो नो, उधर सेम था देख लेना, उधर खाली इधर माइनस होता है, इधर इधर सेम था, एंड m हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट सर, उधर माइनस एम वीओ नहीं था, उधर एम वीओ ही था, हेलो, बट m Sir. केम अप टू बी नेगेटिव ओवर देयर, हेलो, Yes. m केम अप टू बी नेगेटिव ओवर देयर, समझ में आ रहा है क्या बात, इसको खींच लो, फोटो खींच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ऑफ लेंस, इसके बिना काम होने वाला नहीं है, नहीं है, सीरियसली नहीं है, गेटिंग इट, हेलो, यार बोलो ना, कुछ बोलते नहीं हो आप लोग, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी है ना, खत्म हो चुका लेंस, अभी हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सम्स करते हैं, ताकि आपको कल भी मैं सुबह में टाइप्स ऑफ सम्स ही सिखाऊंगा, बट अभी थोड़े 4-5 टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आ जाएगा, हेलो, हेलो, यार बोलते ही नहीं हो आप लोग हैं। टाइप 1, आशना बेटा, आर यू देयर, Yes, sir. यस सर, ओके ओके, और कौन है, राजवीर, यशवी,
Ansh, Pethani, Abbas is there. Rajveer, Rajveer, चल Yes, भाई, sir. हाँ इधर देखो, मैं आपसे कहूँ एक क्वेश्चन है, चलो फटाफट मेरे आंसर देना आप लोग, टाइप बाई पढ़ो, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे डिस्कस करते हैं। मैं आपसे कहूँ एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका पावर है 2 diopter, एंड एक कॉन्केव लेंस है, एकदम नीट टाइप का क्वेश्चन है, जिसका फोकल लेंथ इज 40 cm, दोनों को जोड़ दिया। आई वांट टू फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एज वेल एज फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस को जोड़ दिया, मेरे को कॉम्बो का पावर चाहिए, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? So for power P is is P equals to P1 plus P1 P2. plus P2. वेरी गुड, पावर ऑफ द कॉम्बो इज P1 प्लस P2। P1 मालूम है? हाँ सर मालूम है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, सही है क्या? Yes, हेलो, sir. तो इसको तो प्लस डी 2D करके लिख देता हूँ। सुजल, P2 के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है क्या आपको? No. व्हाट इज P? 1 upon F. 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ, बट एफ इसका माइनस है क्या प्लस है? कॉन्केव लेंस है बेटा, ये एफ इसका Minus. माइनस है, ध्यान रखना। तो विल बिकम प्लस 2D प्लस 1 अपॉन माइनस 40 cm, बट ये सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होना मांगता है। हेलो हेलो Yes, sir. हेलो यार, बोलते Yes, नहीं sir. हो Yes, आप लोग, sir. तो ये क्या हो गया? प्लस 2D माइनस 2.5D, Yes, sir. कितना होता है ये? Minus 0.5. इसका मतलब क्या? द रिजल्टेंट लेंस इज विच लेंस? Concave. Concave. हाँ हाँ, आंसर माइनस में आया, मतलब जो लेंस बनेगा ना कॉम्बो लेंस इज विच लेंस? हेलो, अच्छा एफ कहाँ से आएगा? एफ, एफ ऑफ कॉम्बो 1 upon ऐसे, P. पावर कॉम्बो इज 1 अपॉन एफ कॉम्बो, तो पावर कॉम्बो इज 0.5, 1 अपॉन एफ, तो एफ विल बिकम हाफ, बट माइनस हाफ, सही है क्या? Yes, sir. अरे भाई ये लायक है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं? सही है ना? पर कुछ भी करते रहते हो आप तो। Come हेलो, 2 na. 2 आएगा, Yes. हाँ Yes, sir. 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, सही सही। 2 minus 2 meter, that is minus 200 centimeter। हेलो, Yes, sir. बोलते ही नहीं है, एटलीस्ट आवाज सुनने को तो मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2। चल मजा आएगा, इधर ध्यान देना सब लोग, कल भी सुबह इसके ही सम्स करेंगे, प्लीज बी प्रेजेंट। ये Yes, sir. इंट्रोडक्टरी चल रहा है, इसके आगे हम लोग और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करेंगे और नीट करेंगे, बहुत ज्यादा सम्स करेंगे, आप टेंशन मत लेना, बस एटलीस्ट प्रेजेंट तो रहो यार, और कुछ बोला करो मुंह से, अंडरस्टैंड? ये अच्छा, ये कौन सा लेंस है बेटा? अरे यार बोलो ना, कौन सा लेंस है? plane. Plane. प्लेनो कॉन्वेक्स है, सही है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। चलो राजवीर, अब्बास, अब्बास टाउनी वाला, आर यू देयर? हेलो, अरे जोर से बोलो, यस सर मैन। हाँ, क्या दोनों तरफ लेंस के मीडियम सेम है क्या अलग अलग है? Same. हाँ Same, sir. सेम है, तो क्या कंडीशंस आर ओबेड व्हिच आई टोल्ड यू? Yes, sir. So, तो हमको पूछा है व्हाट इज द एफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो कैन आई यूज लेंस मेकर्स फार्मूला? व्हाट इज द लेंस मेकर्स फार्मूला? 1 अपॉन एफ is mu2 by mu1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। हेलो, Sir. कंडीशंस आर ओबेड। अब सुजल, सुजल आर यू देयर? Yes, sir. बेटा mu1 कितना है, mu2 कितना है? mu1 is 2. mu1 is 2, mu2 कितना है? 1.5. और ये बाहर वाला mu3 पकड़ता है, बट दोनों तरफ सेम है ना, तो दिस इज mu1 एंड mu3 आर द सेम ओनली, बराबर है क्या? Yes, sir. ये हो गया। अच्छा आशना, आर यू देयर? आशना,
Yes, sir. बेटा R1 कितना है? R1 ये होता है ना, और ये R2 होता है। बोलो R1 कितना है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, R. R1 क्या रहेगा? हाँ बेटा दिया हुआ है ना नीचे, +40 के -40? +40, ओके। +40 in the direct. हाँ चलो राजवीर, सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन, R2 कितना है? हेलो, भाग गया। Infinity. It's हाँ infinite. R2 is infinity because it is plane surface. हेलो, hey, yes or no? Yes, sir. और उसमें Yes, वैल्यू sir. डालो, 1/f is mu2 1.5 by mu1 is 2 -1 1/R1 -1 upon infinity, ये तो 0 होता है। हेलो, अरे यार कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग इधर। तो 1/f ये क्या होता है? ये 0.5 हो गया, -0.5/2 इंटू 1/40 कितना होता है? ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 to the 4 4 4 160 -1/160। तो f का वैल्यू कितना आया? -160 मतलब क्या? इट इज एक्टिंग एट द कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस? Concave. इट इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्केव लेंस। क्लियर है बाबा? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अरे यार यही नीट में आता है, यही जेई में आता है, अभी क्या करूं मैं? अंडरस्टैंड? गॉट इट? गॉट इट मतलब इट विल एक्ट लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। आशना, ये कॉन्केव लेंस है, इट विल एक्ट लाइक अ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अरे Diverging. डाइवर्जिंग मतलब रेज ऐसे जाके डाइवर्ज हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? दिखता तो कॉन्वेक्स है, दिखता तो कॉन्वेक्स है, बट अगर साइड के मीडियम हमने म्यू1 म्यू2 को चेंज कर दिया तो रेज कन्वर्ज होने के बजाय क्या कर जाएंगे? डाइवर्ज कर जाएंगे। डिड यू गेट इट? हेलो, Yes, sir. सब कॉन्सेप्ट्स है ना भाई, ध्यान रखना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। तो ये चीज अगर हम कॉन्सेप्ट में ही डाल दें कि अगर ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर बाहर का म्यू बड़ा रहे अंदर के म्यू से, तो रेज विल चेंज इट्स नेचर। रे विल चेंज इट्स क्या नेचर? मतलब कॉन्वेक्स क्या बन जाएगा? Concave. कॉनकेव बन जाएगा, और वाइस वर्सा। गेटिंग इट? तो अगर इसको वैसे ही बिहेव करना है तो अपना बाहर का मीडियम हमेशा रेयर होना चाहिए। अगर बाहर का मीडियम डेंसर बन गया तो अपने नेचर को बदल देगा। Yes, sir. हेलो, सुनते ही नहीं हो तुम लोग। अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इधर भागने का नहीं है भाई, इधर ध्यान दो। 10 मिनट और करेंगे, ठीक है? ध्यान दो इधर। मैं आपसे कहूं एक कॉन्वेक्स लेंस है, image is 2 times of that of object. Okay, focal length is 10 cm. Find the object distance. कितने केसेस आने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस में? कितने केसेस है मैग्नीफाइड के? हेलो हेलो, 2, sir. 2 से याद है केस 3 और केस 5। Yeah. सॉल्यूशन, आई नो मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड इज v by u। तो u को अगर हम, हेलो, तो केस 3 में क्या पकड़ा था हमने? u को -x। हेलो, Yes, sir. तो v को क्या पकड़ेंगे? Plus +2x। दिस वाज केस 3, याद है? 3. केस 5 में क्या पकड़ा है?
u को हमने माइनस एक्स पकड़ा है, v क्या क्या पकड़ेंगे? -2x. अब कुछ दम ही नहीं, अब हो गया सॉल्व। हेलो, विच फॉर्मूला डू यूज? कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला कौन सा है? 1/v माइनस 1/u इज 1/f। हेलो, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? v कितना है? 2x है, माइनस और माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 1/x 1/f, f इज 10, और यहाँ पर 1/2x मतलब माइनस 1/2x प्लस 1/x इज 1/10। हेलो 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 हेलो, यस और नो? Sir. यहाँ से x आपको 15 आएगा, इसमें x आपको 15 आएगा, और इसमें x आपको 15 आएगा, और इसमें x आपको 5 आएगा। हेलो, तो मतलब पहले के इसमें u कितना है? 15 सेंटीमीटर मतलब -15, एंड इसमें u कितना है? -5। सर माइनस साइन क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑलरेडी माइनस साइन सब में ले लिया मैंने, तो डबल डबल माइनस मैथमेटिकली नहीं आ सकता है। हेलो हेलो Yes, हेलो, sir. अभी इसको 10 बार मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। ओके, आप लोग नहीं करेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सम है। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? हेलो हेलो हेलो, Yes, यस और sir. नो? चलो आगे आगे आगे। ओके, मैं फिर से वही सम्स करूंगा आगे, आज ब्रश अप कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आए। ये ऑब्जेक्ट है, 5 मिलीमीटर पर सेकंड से चल रहा है इधर, कितना डिग्री? 37 डिग्री। कहला इमेज कहाँ भागेगा? ये ऑब्जेक्ट है ना, 30 सेंटीमीटर, और उसका फोकल लेंथ 20 है। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ द इमेज, सही है। Yes, sir. चलो इसको, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 30 पर है। सबसे पहले हम v ढूंढ लेते हैं, तो कहना इसे 1/v माइनस 1/u इज 1/f। Hmm. v तो मालूम नहीं है, u कितना है? 1/-30. f कितना है? +20, बिकॉज कॉन्वेक्स है, सही है। Yes, sir. यहाँ से v आपको +60 मिलेगा, +60 मतलब किस तरफ? अरे बोलो यार, इधर आएगा ना? Yes, sir. हम्म, चलो अब मजा आएगा। देखो, अब एक काम करो, ये जो 5 मिलीमीटर पर सेकंड है इसको तोड़ो दो भाग में, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कितना हो जाएगा? 5 cos 37, दैट इज 4 मिलीमीटर पर सेकंड। हेलो, Yes, और ये क्या हो sir. जाएगा? 5 sin 37, दैट इज 3 मिलीमीटर पर सेकंड। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस? m² VO. vi इज m स्क्वायर vo। भाग मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले m ढूंढना पड़ेगा। m का फॉर्मूलो V/U. v by u, v by u, v by u, v by u। m कितना है? +60। u कितना है? -30। तो m कितना हो गया? -2। -2. तो m स्क्वायर कितना हो गया? +4। Four. Yes, sir. तो vi विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ vo, बट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? ये 4 है ना। 4. तो 4 4 सा 16 मीटर पर सेकंड, मिलीमीटर 16 मतलब +16, +16 मतलब यही डायरेक्शन में जा रहा है, मगर ये 16 से जा रहा है, सही है क्या? Yes, sir. हेलो, Yes, यार sir. रे ऑप्टिक्स हार्ड नहीं है, रे ऑप्टिक्स ओके मैं बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा स्टफ है। आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, बुक कलेक्ट करो, ओके, और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते जाओ। एक माइनस प्लस का गलती हुआ और सब उड़ जाएगा, मेहनत सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, कहना है इससे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, चलो जल्दी बताओ। अरे बोलो VI वी is आई। VO. MVO. एम कितना है? -2। -2. वीओ कितना है? अलोंग द प्रिंसिपल 3. एक्सिस पे परपेंडिकुलर 3 है। ये -6 हो गया, -6 मतलब उल्टा, ये ऊपर जा रहा था तो ये Downwards. नीचे जाएगा। Yes, sir. इसका रिजल्टेंट निकालने आता है कि ये भी सिखाओ? हेलो, 16² + 6. हाँ आता है ना सब? हेलो, Yes, sir. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है Yes. भैया? यस और नो? और यही चीज मैंने वीडियो में भी की है, सेम 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 चीज की है। ओके, Yes, sir. गॉट इट भाई, गॉट इट? फाइन। एक लास्ट सम करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन। इधर देखो, हाँ सब लोग भाग मत जाना। ये देखो, ये 17 से 14 हो गए। ओके, एग्जाम में भी ऐसे ही होने वाला है, ध्यान दो। ये चीज है बेटा, प्रिंस, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ऐसे मोड़ दिया गया है, सही है। हेलो, ऑब्जेक्ट इधर है। ओके, कैन आई से प्रिंसिपल एक्सिस इसका ये है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ये है ना, Perpendicular. क्लियर है। Yes, हेलो, sir. so can I say actually the object from the principal axis is like this? आप टेढ़ा देखो ना लेंस को। हेलो, can I say this is the object? हेलो, yes or no? Yes, sir. फोकल लेंथ आपको 20 cm दिया एंड ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू O1P आपको दिया हुआ है, OP आपको दिया हुआ है 2 mm, this is given as 2 mm and O1P, this distance is also given as 30 cm, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अच्छा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। हेलो, Yes, sir. चलो मजा आएगा, अभी इधर ध्यान देना। हाउ मच इज यू, यू कितना है। हेलो, हेलो, रेस तो ऐसे आएंगे ना, बोलो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ना। हेलो, तो यू कितना है, यू 30 है ना, -30। हेलो, यू इज, अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोग को। नहीं समझ रहा है। हेलो, हेलो, बोलो। Yes, sir. Okay, this is 30, so you will be -30 cm. How much is the height of the object? 2 2 mm. mm. अरे इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ यार, क्या इतना करते हो ऐसे तुम लोग। ये देखो, ये इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना मैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये 2 mm का इधर है, बराबर है क्या। हेलो, ये 30 सेंटीमीटर, इसको सीधा कर दिया मैंने, ये ब्लैक लाइन को मैंने सीधा कर दिया, सही है क्या। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना दिया, बोलो अभी चलेगा। अरे हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. हाँ, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 mm। अब मुझे बात बताओ कैसे ढूंढेंगे। 1/v - 1/u is y, ये हार्ड वाला समय, नीट बीट में नहीं आता है। 1/v - 1/u, u is +30, तो ये +30 हो गया। 1/f, f is 20, तो v का वैल्यू आपको मिलेगा +60। +60 वेयर, आशना कैन यू टेल मी +60 मतलब किधर आएगा, अलोंग द ब्लैक लाइन और द रेड लाइन। हेलो, हाँ बेटा, यहाँ पर will come v मतलब along, v is always along which axis, Principal Principal axis. यहाँ पर this will be 60 cm। Yes, sir. ओके, हेलो यार बोलो, सही है Yes, क्या। sir. अच्छा मजा आएगा, अभी इधर ध्यान देना सब लोग, मजा आने वाला है। देखो इधर, आशना मुझे बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। V/U v कितना है +60 और u कितना है, +30 -30. ये -2 हो गया। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है -2 टाइम्स ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा। एंड मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला याद है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, याद है। Yes, sir. So can I say how much will be the height of the image? -2 times of height of object is 2 mm. That will be -4 mm. -4 mm का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे है तो ये 4 mm ऊपर है ऐसे। हेलो, ये Yes, नीचे जा रहा sir. है ना, ये नीचे जा रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से डॉटेड से, तो ये ऊपर जाएगा ना, यस और नो। हेलो, Yes, सब sir. जेई वाले सब चुप हो गए यार, नीट वाले बोल रहे हैं अभी। यार समझ में आ रहा है जेई वालों को यार क्या हो Yes, रहा है। sir. हाँ, ये चीज है। अच्छा, ये पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर विल टच हियर ओनली, विल टच ऑन द रेड लाइन। व्हाई, बिकॉज दिस थीटा एंड दिस थीटा आर द सेम। तो अगर
अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल है, आधा ट्राइंगल है, तो ये डबल ट्राइंगल हुआ ना, ये 60 है बेटा, ये 30 है, देखो कैन आई से 30 by 2 by 30 is 4 by 60, तो इट इज गोइंग टू मीट ओवर हियर ओनली ना, ये पॉइंट इधर ही टच करेगा, बिकॉज एक्चुअली बोथ द रेज आर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। देखो एक रे यहाँ से पास हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा रे ये भी जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो दे विल मीट हियर ओनली। और दिस इज एन इम्पोर्टेंट सम ऑफ IIT JEE, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो पर भी दिया है, यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइम टुमारो मॉर्निंग I will be continuing with some important theory of another lens and we'll be doing some exercise sums. Chalo, thank you very much. Bye. Nice.